तेरा तेरा का जो फलसफा है सर, वो आप किस तरीके से आके लेकर जा रहे हैं? ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਦਸਵੰਧ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ 10% ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਫਾਰ ਦਾ ਪੂਅਰਸ ਐਂਡ ਨੀਡੀਜ਼। ਇੱਕ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ उस अस्पताल के दरवाजे खुले हों। दिन में अगर देखा जाए आप कितने लोगों की सेवा करते? पर डे 80 से लेके 100 तक सर्जरी पर डे ही यहाँ पे होती हैं। 13 डॉक्टर्स जो हैं टोटल यहाँ पे हैं, जिसमें से 11 डॉक्टर आइज़ के हैं, एक एनेस्थीसिया का है और एक मेडिसिन का है, जो सारे ऑपरेशंस की फिटनेस, मेडिकल फिटनेस वो भी करते हैं। यहाँ पे जो दूर से गरीब लोग आते हैं उनको आने जाने का किराया भी यहाँ से मिलता है। हमारे आज डेट में चंडीगढ़ में 5 हॉस्पिटल चल रहे हैं, तो हम पहले ये चाहते हैं कि इनको इकट्ठा करके 2-3 एकड़ में एक बड़ा बनाए, जैसे पीजीआई है। दुनिया में आज ये पोजीशन है कि हर बंदा चाहता है मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूं, पर प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि उनको समझ नहीं आ रहा भी कोई जेन्युइन है और कोई जेन्युइन नहीं है। तो अगर आपके साथ परमात्मा का हाथ है और लोग अच्छे जुड़े हैं तो फिर कहीं जाके पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है। डे टू डे भारत आप देख रहे हैं और मैं हूं अमर। हरजीत सिंह सब्बरवाल जी का एक ऐसा नाम है जो पूरे देश में विख्यात है। हरजीत सिंह सब्बरवाल ऐसी सेवा करते हैं जिस सेवा को सुनकर आप भी उनके कायल हो जाएंगे। जितने भी देश के नेता हैं, आमजन हैं, उनके दर्शन करने के लिए चंडीगढ़ ज़रूर आते हैं, क्योंकि एक तो सेवा है और ऊपर से जो निष्काम भावना से ये लोगों की मदद करते हैं, उनके भी काफ़ी ज़्यादा चर्चे हैं। हरजीत सिंह सब्बरवाल जी से मिलवा देता हूँ। सब्बरवाल साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूँ सर। मैं चाहूँगा आप पंजाबी में ही बोलें, मुझे हिंदी में पूछने दीजिए, क्योंकि पंजाब में आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है और देश में दूसरे लोग भी इस इंटरव्यू को देखेंगे। लेकिन तेरा तेरा का जो फ़लसफ़ा है सर, वो आप किस तरीके से आके लेकर जा रहे हैं? निष्काम सेवा से सब कुछ हो रहा है और ये कब तक चलेगा? क्या भावना है दिल में और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਦਸਵੰਧ ਮੀਨਸ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ 10% ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਫਾਰ ਦਾ ਪੂਅਰਸ ਐਂਡ ਨੀਡੀਜ਼। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ 8 ਫਰਵਰੀ 2018 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ, ਈਵਨ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨਲੀ ਜੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕੈਟਰੈਕਟ ਦਾ ਸਫੇਦ ਮੋਤੀਏ ਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰੈਟਨਾ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੋਰਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਲੈਕ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣੇ ਦਾ भी बंदोबस्त जड़ा वो ਇੱਥੇ होवे। बिल्कुल सर, सारी फैसिलिटी मैंने यहाँ पर देखी है, लेकिन ना आज मैं लोगों से मिल रहा था, कोई कह रहा है मैं यूपी के आजमगढ़ से आ रहा हूँ, यानी 800 किलोमीटर ये दूर हो गया। एक माता जी बोल रही हैं मैं उत्तराखंड से आई हूँ, वो भी 600 किलोमीटर दूर से वो आई हैं। तो दिन में अगर देखा जाए आप कितने लोगों की सेवा करते हैं? एक प्राइवेट हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूँ, कोई भी डॉक्टर एवरेज 1 घंटे में 12 से 13 पेशेंट्स को डील करता है, तो कितना मुश्किल होता है 100 से ज़्यादा पेशेंट्स को एक डॉक्टर के लिए हैंडल करना, और कितनी टीम है सर, और क्या इक्विपमेंट है? देखो हमारे पास आज 13 डॉक्टर्स जो हैं टोटल यहाँ पे हैं, जिसमें से 11 डॉक्टर आइज़ के हैं, एक एनेस्थीसिया का है और एक मेडिसिन का है, जो सारे ऑपरेशंस की फिटनेस, मेडिकल फिटनेस वो ये करते हैं। 2 ऑपरेशन थिएटर हैं पर डे, 80 से लेके 100 तक सर्जरी पर डे ही यहाँ पे होती हैं। आज भी अभी आप देखोगे दोनों ऑपरेशन थिएटर्स में इस समय सर्जरी चल रही है, सुबह से लेके शाम तक ऑपरेशन यहाँ पे होते हैं। पूरे इंडिया से लोग आते हैं। एक तो ये है कि यहाँ पे फ्री इलाज होता है, दूसरा ये है कि जो दूर दराजे में लोग गांवों में रहते हैं, वो अगर हम यहाँ कहें फ्री ऑपरेशन करते हैं तो वो तो आ ही नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनके पास किराया नहीं है। तो यहाँ पे जो दूर से गरीब लोग आते हैं उनको आने जाने का किराया भी यहाँ से मिलता है। अब देखिए सर, एक यहाँ संस्था की बात करूँ, 18 सेक्टर में जो आप चला रहे हो, ये बहुत पुराना आपका एक ऑफिस है या फिर कहे संस्था है जो सेवा कर रही है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि भारत के अनेक हिस्सों में आपकी ये संस्था स्पैन करे, आप वहाँ पर भी सेवा करें? अभी हमारा ये है कि हम जो है एक प्रे करते हैं, अरदास करते हैं कि पहले एक हमारे आज डेट में चंडीगढ़ में 5 हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो हम पहले ये चाहते हैं कि इनको इकट्ठा करके 2-3 एकड़ में एक बड़ा बनाए, जैसे पीजीआई है। तो पहले सारी फैसिलिटीज़, सारे डॉक्टर्स एक प्लेटफार्म पे लेके आएँ। पहले एक मॉडल ये दुनिया का गुरु नानक साहब का बन जाए, उसके बाद फिर आगे देखेंगे, जो परमात्मा को मंजूर होगा वो करा लेगा। मैंने सुना नया गांव में भी आप एक जगह देख रहे हैं और ऐसा ही कोई मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये 18 सेक्टर का जो आपका ऑफिस है, इसका रेंट भी 75,000 के करीब आप दे रहे हैं, शायद इतना ही होगा। लेकिन आप फिर भी चाहते हैं एक बड़ा हॉस्पिटल हो, जैसे आपने अभी फरमाया। तो आप क्या कहेंगे इस चीज़ को लेके? कोई मदद चाहिए आपको, या इतना फ़ंड है आपके पास कि ठीक है, इतनी आप भगवान की दया से कृपा हुई आप पर, और फंड भी इतना है कि आप अपने ही दम पर खोल सकते हैं अस्पताल? देखो ऐसे है कि ये सेवा का क्षेत्र है, इसमें जब तक आपके साथ अच्छे लोग, अच्छे डोनर्स नहीं जुड़ेंगे, और दुनिया में आज ये पोजीशन है कि हर बंदा चाहता है मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दूं, पर प्रॉब्लम ये आ जा रही है कि उनको समझ नहीं आ रहा भी कोई जेन्युइन है और कोई जेन्युइन नहीं है। तो वो लोग 1-2 बार देते हैं किसी संस्था को, फिर पता लगता है यहाँ तो गड़बड़ है। तो अगर आपके साथ परमात्मा का हाथ है और लोग अच्छे जुड़े हैं, तो फिर कहीं जाके पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं होती। रिसेंटली हमारा जो नया गवर्नमेंट ने न्यू चंडीगढ़ में हॉस्पिटल जो है, इस महीने कंस्ट्रक्शन उसकी आरंभ हो रही है, जो डेडिकेटेड आई हॉस्पिटल होगा 40,000 स्क्वायर फीट का। मतलब उसमें हम उसको आई अस्पताल के साथ एक चीज़ हमने वहाँ और जोड़ रहे हैं, आई इंस्टीट्यूट भी बना रहे हैं कि रिसर्च का काम भी जो है वो उसमें धीरे धीरे हमने स्टार्ट करना है। क्योंकि हमारे पास अब डेली जो यहाँ पे है, डेली यहाँ पे हमारे 700 से ऊपर पेशेंट पर डे की ओपीडी है। अब 8 बजे आओ, ये सड़कें जाम होती है यहाँ। अब तक 6 साल में 15 लाख से ऊपर लोग जो है अपना आँखों का इलाज करा चुके हैं। 1.5 लाख से लोग जो है ऊपर वो आँखों का ऑपरेशन करा चुके हैं। 30 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पे लंगर छक चुके हैं। तो वो परमात्मा की कृपा, वो हिम्मत देता है हमें, लोग अच्छे अच्छे लोगों का साथ देता है, तो ये अपने आप ये चीज़ें, हम कहीं मांगने नहीं जाते पैसे, तो उसकी कृपा है। जो मशीन हमें आज पीजीआई में भी नहीं है, वो आज हमारे पास है।
अब हमारे पास 1-1 करोड़ से ऊपर की 4 मशीनें हमारे पास हैं, वो उसकी कृपा है। कई पेड स्टाफ भी आपके पास, अनपेड लोग भी बहुत बड़ी गिनती में सेवा कर रहे हैं और कुछ रिटायर्ड लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। मैं मिला काफ़ी लोगों के साथ। तो अगर टीम की बात करें तो इसी तरीके से 9 बजे से लेके रात 7-8 बजे तक आप लगे रहते हैं सर? नहीं, ये वाला अस्पताल हमारा शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, पर दूसरे हॉस्पिटल जो हमारे 24 घंटे भी चलते हैं। अच्छा, कोविड टाइम में भी आपने सरकार का बहुत साथ दिया था। ये संस्था क्या और संस्थाओं के साथ मिलकर भी काम करती है? नहीं, हमारा अपना इंडिविजुअल होता है, जितना मर्जी बड़ा टास्क हो हमारा टास्क करके शुरू करते हैं और टास्क पूरा हो जाता है। क्योंकि हर एक संस्था की आइडियोलॉजी, काम करने का तरीका, सिस्टम डिफरेंट होता है। हम अपनी मौज में काम करते हैं और हमें किसी की परमात्मा और लोगों की ब्लेसिंग्स के अलावा किसी की वो ज़रूरत नहीं होती भी, को आए हमें ही समर्थ परमात्मा बना देता है। जो आप कोविड अस्पताल जो है चंडीगढ़ में, जब सरकार के भी हाथ खड़े हो गए थे, तो 36 घंटे में हमने 50 बेडेड हॉस्पिटल बनाया, जिसमें हर बेड के ऊपर ऑक्सीजन थी, हर बेड पे मॉनिटर था, वेंटिलेटर थे, दवाइयाँ थी, डॉक्टर थी। इवन कि चंडीगढ़ के एडवाइज़र और हरियाणा पंजाब के गवर्नर वो विज़िट करके गए और खुद हैरान हो गए, कहते हम लोग कुछ चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर रहे, आपने 36 घंटे में प्रोवाइड। 36 घंटे में हमने अस्पताल शुरू किया और 4 घंटे के अंदर 50 के 50 बेड पूरे थे। क्योंकि किसी अस्पताल में ना बेड था, ना ऑक्सीजन थी, ना वेंटिलेटर था, ना कुछ था। लोगों ने इतनी लूट मचाई प्राइवेट अस्पतालों में, आप सबको पता। तो मतलब वो तो ये सोच रहे थे कि अब बंदा आया तो इससे तो खाली बेड के 20-20 हज़ार पर डे ले। तो हमें वो कृपा की, परमात्मा ने फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ हॉस्पिटल बना और गवर्नर ने भी प्रेज़ की, कहते भी हम तो हैरान है कैसे, पर कृपा उसकी है, परमात्मा की। और लोगों ने इतना साथ दिया ना, मैं हमारा मतलब हमें ज़रूरत नहीं पड़ी किसी को बोलने की भी पैसे दे दो। सुबह-सुबह फ़ोन आ जाते थे, हमने 4 लाख का चेक डाल दिया आपके अकाउंट, आप काम करो। क्योंकि कोविड के अंदर ये प्रॉब्लम थी कि मैन पावर जो थी ना वो नहीं मिलती, कोई भी कोविड में निकलने को तैयार नहीं था। अगला हमारी संस्था में ही अगर 50 बंदे हैं तो 50 बंदों से 35 बंदे तो अपने घरों में फंस गए। वो कहते हैं उनके फैमिली ने कहा नहीं जाना जी, क्यों जाना है, आग में क्यों जाना है, क्यों मरना है। तो जिस पे कृपा परमात्मा ने की वो उन्होंने सेवा की, और किसी भी हमारे बंदे को जिन्होंने सेवा की, किसी भी बंदे को कोविड नहीं हुआ। मतलब बिना मास्क के घूमे हम उन्हों दिनों में। पर उसकी कृपा थी कि सेवा जो होती है ना, उसका एक ऑरा बनता है, तो परमात्मा फिर अपने आप कृपा करता है। सर फिर भी बजट कितना लगता है 1 महीने का, अगर मैं इस जगह की बात करूँ? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। चलिए, अनलिमिटेड खर्चा है लेकिन फिर भी निष्काम सेवा है। वीडियो जर्नलिस्ट मनदीप के साथ अमर शर्मा की रिपोर्ट, डे टू डे न्यूज़।